आपको जो भी समझ में आता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो while doing this chapter, that is concept and accounting for depreciation, is that now we must know according to which concept and according to which standard are we doing this type of accounting. जैसे हमने इन्वेंट्री वाला चैप्टर किया था, ओके, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था. द कॉन्सेप्ट वाज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. ओके, और उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था AS2, which gave us guidance about the methods to be used for valuation of inventory, how to find out the cost of inventory, how to find out the net realizable value of inventory. Okay, so all these things were guided by accounting standard 2. Now on the similar lines, we are going to study accounting standard 10, that is property, plant and equipment. Okay, now please tell me what is an asset. Asset क्या होता है? जो लैंग्वेज में आपको समझ में आए. What is an asset? चलो क्विकली, ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में. चलो चलो, नहीं तो मैं किसी को नाम लेके बोलूंगा. क्विकली, व्हाट इज एन एसेट? Any item that can be realized and converted into cash. Okay, anything that can be realized and converted into cash. Anyone else? कोई और बोलना चाहेगा व्हाट इज एन एसेट? देवांशी, व्हाट इज एन एसेट? एसेट क्या होता है? Sir, some. Asset is an object which is having the debit balance and which can be realized. Which can be realized, which is having a debit balance. Anyone would like to add up to this thing? Asset क्या होता है? Any item or property having a realizable value. Which is having realizable value. Okay, fine enough. Okay, Sakina, would you like to add? Asset क्या होता है? No, sir, that's it. Something that is valuable to a person and has a realizable value. Has a realizable value. That is an asset. Fine. Okay. So to put it simply, okay, can I say asset is something which must be owned by an enterprise? Yes. Owned by the firm. Okay. Okay, एक और वर्ड ऐड करते हैं, owned and controlled by an enterprise. Okay. Yes. Why do we purchase any asset? So from which future economic benefits are expected. Can I say? Yes. Okay. तो बोल सकते ना ऐसा, asset is something which is owned and controlled by an enterprise from which future economic benefits are expected. Okay. So we further divide the asset into tangible asset and intangible asset, or we can non-current assets. है ना, ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं ना. Yes, sir. Over here we are going to discuss about non-current assets. Okay, that is fixed assets. Okay? अगर मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना हो, है ना, ये एसेट का डेफिनेशन है, पर मुझे अगर फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन चाहिए तो ऐड करेंगे. Which remain the firm for a period of more than operating cycle. More than one operating cycle.
Yes. So we can say more than one accounting period. Period. Yes. Okay. Yes. So ऐसा लिखेंगे from which future economic benefits are expected over a period of more than one accounting period. Is it fine? Yes. Okay. कुछ और लिख सकते हैं? Yes. मैं याद करवाऊंगा तो याद आ जाएगा. ठीक है, चलो, है ना. इसका यूसेज क्या होता है? व्हाट इज द यूसेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट? इसको क्यों खरीदते हैं हम लोग? फिक्स्ड एसेट को क्यों खरीदते हैं? व्हाई डू वी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट? इफ हो गया ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. व्हिच टाइप ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? बोलो. Long term. ओह, ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. यस. उस एसेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? Production. प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैन आई से सप्लाई ऑफ सर्विसेज? Yes. कैन आई से रेंटल टू अदर्स? मैंने एक जेसीबी खरीदा, है ना, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले जो होते हैं या जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनको रेंट पे दे दिया, तो मेरे लिए तो वो फिक्स एसेट ही हुआ ना, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. ओके, चलो. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मैं ना तो उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ, ना ही सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ, ना उसको किसी को रेंट पे दे रहा हूँ. मैं उसको खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूँ. The asset that I have created will be used for my administrative purposes. It can be anything. Okay? Asset is something which is owned and controlled by an enterprise from which future economic benefits are expected. अगर मैं इतना ही लिखूं तो ये कोई भी नॉर्मल एसेट का डेफिनेशन है. अगर मुझे उसको फिक्स्ड एसेट के डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो Or more than one account. it is having benefit over a period of more than one account. मैंने year नहीं लिखा है, इधर क्या लिखा है? more than one accounting period. ओके, मैं जैसा लिखूंगा वैसा आपको याद रखना है. You have to ना, इस तरह से आपको रिमेम्बर करना है. ओके, the asset can be used in production of goods or supply of services or rental to others or for administrative purposes. किसी को यहाँ तक डिफिकल्टी है, डाउट है तो पूछो. एसेट का डेफिनेशन ना समझ में आया हो या तो आपको कुछ और याद आ रहा हो, ऐड करना हो. हम कई सारी नई बातें सीखने वाले हैं जो आप पहले सीख के नहीं आए. ओके, सो मेनी न्यू थिंग्स आर देयर. मैंने इधर जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, ओके, उसमें से कोई भी टॉपिक वो एग्जाम में पूछ सकते हैं. एनीथिंग. थियरी भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ऑन एन एवरेज डेप्रिसिएशन का 5 से 6 मार्क का वेटेज होता है. ओके, तो वो या तो थियरी हो सकता है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन. चलो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? What is depreciation? Loss in the value of Loss. decrease in the value of a fixed Decrease in the asset value of due asset, to loss in the value of normal asset. wear and tear, Okay. उसका अलग अलग रीजन expected है. obsolescence. Gradual decline in the value of assets. Gradual decline in the value of asset. Okay. Anybody else? So what I am writing is, आपका जो भी आंसर आया उससे लिखते हैं. Gradual and systematic.
तो सिर्फ ग्रेजुअल होगा तो नहीं चलेगा, इट शुड बी gradual and systematic reduction in the value of asset due to wear and tear with passage of time or usage of asset or change in technology, we can say obsolescence. Expected obsolescence. So it is a gradual but systematic reduction in the value of asset. Okay. तो अगर ये वर्ड नहीं होगा ना, सॉरी ग्रेजुअल वर्ड नहीं होगा तो भी डिफिकल्टी है, और सिस्टमैटिक रिडक्शन वर्ड नहीं होगा तो भी डिफिकल्टी। ग्रेजुअल मतलब इट इज अ स्लो रिडक्शन। ओके, अगर ऑल ऑफ अ सडन रिडक्शन होता है ना किसी भी एसेट की वैल्यू में, ऑल ऑफ अ सडन रिडक्शन होता है तो उसको इम्पेयरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पेयरमेंट। इट इज नॉट कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कहते हैं ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, passage of time, usage of change in technology. Okay? तो इस डेफिनेशन से मुझे क्या चाहिए? What I need to know is a value of asset. क्या पता होना चाहिए? Okay? हम इस डेफिनेशन में से कई सारे नए नए टॉपिक निकालने वाले हैं। तो एक मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ एसेट। इट मीन्स आई नीड कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या चाहिए? और दूसरा सिस्टमैटिक रिडक्शन ही है यहाँ पे। इसके लिए मुझे मेथड चाहिए। क्या चाहिए? ओके, सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? कॉस्ट ऑफ एसेट, Sir, the normal book value minus depreciation. क्या बोल गए आप? फिर से बोलिए। The cost at which we record in the book value minus depreciation. माइनस स्क्रैप वैल्यू, Minus depreciation. depreciation. Okay, so that is called book value और Yes. Book value. डाउन वैल्यू। मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ। जब हम पहली बार कोई भी एसेट खरीदते हैं, The price at which asset The is price that we purchased purchase is Price the and the expenses Plus incurred for installation. using can I the say purchase price, Plus installation expenses. any expense incurred, है ना? कौन से एक्सपेंसेस इनकर होते हैं? ये पढ़ा है? installation expense. हाँ? Installation expense. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, यस। ओके, या बाई चांस अगर कोई लैंड या कुछ खरीदा हो तो लीगल एक्सपेंसेस में भी। ओके, लीगल चार्जेस। ओके, you can say transportation expense. Yes or no? ये भी था ना? Yes. तो परचेज प्राइस, अभी मैं इसमें काफी सारे नए वर्ड ऐड करता हूं और काफी सारे एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे। परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स present location and condition is intended by management. ओके, कौन सा वर्ड ऐड किया मैंने? एक तो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन और दूसरा एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। इसका ये मतलब है कि हर एक एसेट, ओके, से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक एसेट खरीदता हूं, ओके, तो पॉसिबल है कि मेरे लिए उसका यूसेज अलग हो और
कोई और मेरी जगह पे वो एसेट खरीद रहा है, सेम एसेट, बट उसका यूसेज अलग हो सकता है। पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, इज इट पॉसिबल और नॉट? हाँ या ना के तो Yes. दे सकते हो ना, ठीक है चलो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल इज, मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, ओके, कि हम लोग एक ट्रक खरीदते हैं, छोटा सा टेम्पो, ओके। नाउ somebody is purchasing it for using it as goods transport, okay, somebody is purchasing the truck or tempo to use it as a goods transport, okay, but कोई और है उसने बोला कि मैं इसमें फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मीन्स आई वांट टू प्रिपेयर सम रेडीमेड फूड, मतलब वो कुछ एक ऐसा फूड बना के उसको बेचना चाहता है, ओके। ऐसे हम कई सारे फूड ट्रक देखते हैं, ओके। तो क्या जैसा हम खरीदते हैं उसी कंडीशन में उसको यूज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? द कंडीशन इन विच वी परचेज अ टेम्पो फ्रॉम अ शोरूम, क्या उस कंडीशन में उसको यूज करना पॉसिबल है? No. नहीं, ओके, मतलब कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। व्हाट वी नीड टू डू, अगर फूड ट्रक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई, ओके। मतलब उसमें डेकोरेशन करना पड़ेगा काफी सारा, है ना, उसके ऊपर पूरा बॉडी लगवाना पड़ेगा, देन उसके अंदर किचन सेटअप करना पड़ेगा, उसके अंदर फ्रिज सेट करना पड़ेगा। क्या उसके बिना मैं उसको यूज कर सकता हूँ एज अ फूड ट्रक? No. Not possible. So what I am trying to justify is as intended by management. Okay, मैंने एसेट कोई एक खरीदा है, पर जब तक वो मेरे इंटेंडेड पर्पस के लिए रेडी नहीं होता है ना, तब तक मैं जो भी कॉस्ट इनकर होगा उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करूंगा। Is it fine? Whatever cost is incurred to bring the goods in a condition which is intended by management, okay। चलो, हम लोग जो ट्रक्स देखते हैं ना, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स यूज होते हैं, है ना, तो एक आगे कैबिन है जहाँ पे ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है और पीछे पूरा एक गुड्स से भरा हुआ कंपार्टमेंट है, बट जो भी गाड़ियां बनती है ना वो एज इट इज कंडीशन में नहीं आती, इट डज नॉट कम इनटू एज इट इज कंडीशन। तो पीछे की साइड होती है ना, वो तो पूरा खाली होता है, पर टायर लगे होते हैं, चेसिस लगे होते हैं, ओके। बाकी जो एक ट्रक में होना चाहिए, ओके, उसका जो बॉडी है वो हमें अलग से बनवाना पड़ता है, अलग से लगवाना पड़ता है, उसके भी वर्कशॉप्स होते हैं, ओके। तो ट्रक आपको उस कंडीशन में नहीं मिलता है जैसा आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। यू नीड टू मॉडिफाई इट, उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना है तो भी आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब जब तक आपके इंटेंडेड पर्पस के लिए वो एसेट रेडी नहीं होता है तब तक का सारा कॉस्ट हमें कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है, ओके। एक हो गया कंडीशन, दूसरा होता है लोकेशन, ओके। So if I'm bringing the goods, I am purchasing the goods from a foreign country, okay, तो वहां से यहाँ तक आने का खर्चा, वहां से यहाँ तक आने का इंश्योरेंस, वहां का लोडिंग, यहाँ का अनलोडिंग, ओके। यहाँ पे किसी शिप या कंटेनर में हमने मंगवाया है उसको, तो वो यहाँ पे अनलोड करवाया, फिर हम पोर्ट पे से उसको हमारी फैक्ट्री पे लेके आए, उसको इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ओके। तो ये सब मतलब जब तक वो एसेट मेरी फैक्ट्री या तो मेरा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहां तक नहीं आ जाता है, तब तक का सारा खर्चा हमें कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना है। चलो, एक बार मशीन इंस्टॉल हो गया,
ओके जिस कंडीशन में हम चाहते थे उस कंडीशन में आ गया, बट हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है. वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोडक्शन. ओके हम लोग अभी भी ट्रायल रन करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं सर? व्हाट डू वी नीड टू डू? ट्रायल रन. मतलब हम कुछ एक दो चीजें बना के देखेंगे कि वो जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बनता है कि नहीं बनता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मशीन इंस्टॉल हो गया तो अब प्रोडक्शन हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा. उसको तो एक्चुअली यूज करेंगे तब जाके पता चलेगा. तो अभी ट्रायल रन चल रहा है. तो ट्रायल रन का भी जो कॉस्ट होता है ना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट. इज दैट क्लियर? है ना? आप लोगों ने अपने घर पे सब लोगों ने मम्मी या पापा या जो भी है ना खाना बनाने में लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना, उनको भजिया बनाते हुए देखा है? हाँ Yes. देखा है. Yes. अभी तो देखा ही होगा लॉकडाउन में एटलीस्ट एक बार तो, है ना? हाँ. तो वो लोग क्या करते हैं, वो तेल को पहले गरम करते हैं ना, हाँ, फिर सीधा वो भजिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं वो थोड़ा पहले, डाल के देख. हाँ हाँ. डाल के देखते हैं. थोड़ा सा वो तेल जो गरम भी हुआ उन है. लोगों ने बनाया है ना, मिक्स, उसको थोड़ा सा डाल के देखते हैं कि प्रॉपर ऑयल हीट हुआ है कि नहीं हुआ है. समझ में आ रहा है? Yes. वो ट्रायल रन है. क्या है ट्रायल रन? तो उसमें भी तो खर्चा होता है ना. आपका रॉ मटेरियल यूज हुआ, जिसने ट्रायल रन किया उसका लेबर लगेगा. ओके और उससे फाइनल प्रोडक्ट आप जैसा चाहते हो वैसा बनता है कि नहीं वो देखना पड़ता है. इज इज ओके? ट्रायल रन समझ में आया? Yes. Yes sir. ओके. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन. कोई जस्टिफाई करेगा इसको? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन? चलो बता देता हूँ. ये भी ना हम लोग समझो शुगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. वी आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर. ओके तो शुगर के लिए अलग अलग टाइप की मशीनरीज लगती हैं कि उसको पहले पील करना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसको बॉईल करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोगों ने एक फर्नेस लगाया है जिसमें वो जो जूस निकलता है उसका वो बॉईल होता है. ओके बट नॉर्मली जो भी फर्नेस हम लोग लगाते हैं ना, जो सरफेस होता है ना फैक्ट्री का, उसके ऊपर से लगाते हैं ऐसा नहीं होता है. ओके या तो समझो कि हम लोग आयरन के बिजनेस में है जहां पे हमें आयरन को मेल्ट करना पड़ता है. तो उसके लिए भी जो फर्नेस या भट्टी जो बनाई जाती है, वो जो सरफेस होता है उसमें एक गड्ढा बनाया जाता है, पिट बनाया जाता है, और उस पिट में वो मशीनरी इंस्टॉल की जाती है जिसमें वो आयरन को हीट करते हैं. ओके तो मशीनरी तो हम खरीद के लेके आए हीटिंग के लिए, फर्नेस या जो भी कुछ है, बट उसको जहां पे इंस्टॉल करना है वहां पे हमें एक साइट प्रिपेयर करना पड़ेगा, गड्ढा बनाना पड़ेगा. ओके so that is called cost of site preparation. That is also included in the cost of asset. Is it okay? कुछ नया समझ में आया कि वही का वही है? What are the new things? What is the scrap value of asset? Maximum value that can be fetched by selling an asset after its useful life. Okay, the value that can be fetched. Okay, once the asset, the life of asset is has come to an end, है ना, asset का useful life खत्म हो जाता है, तो उसके बाद तो ये पता होता है या estimate करना पड़ता है? Estimate. Okay, Estimate. so
estimated realizable, what is happening? Realizable value of an asset at the end of its useful life. Okay. Does it change? क्या ये चेंज होता है? जो एक बार फिक्स कर दिया वही रहता है? Change होता है. It can also change. With the passage of time or availability of new information. Okay. कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हम स्क्रैप वैल्यू रख सकते हैं? Any idea? What is the maximum percentage of cost of asset that can be kept as a scrap value? 50%, I guess. 20. Okay. Anyone else? So, बता देता हूँ. Usually 10% of cost. Okay. Usually, but not necessarily. इतना ही होना चाहिए. Okay. So, what is an estimated useful life? Estimated useful life क्या होता है? So we estimate for how long that asset will How long the asset will be available for You. our use. Okay. चलो, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या ध्यान रखना चाहिए? चलो, what should be the care that we need to take? हाँ? Estimated useful life डिसाइड करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? कैसे रैंडमली डिसाइड हो जाता है वो? कुछ तो कंसिडरेशन लेना पड़ता होगा ना. वी नीड टू जस्टिफाई. हमने 5 साल लिया तो 5 साल क्यों लिया, 10 साल लिया तो 10 साल क्यों लिया? कोई एक असेट है, एक ही असेट, एक टाइप ऑफ असेट है. मैं खरीदूं तो 10 साल, कोई और खरीदे तो 6 साल. हाँ? तो डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे ना, कोई भी गवर्नमेंट वाले, यार इन्होंने 6 साल लिया है, तुम 10 साल ले रहे हो, समझ में नहीं आ रहा. तो मेरे पास कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए. On how we take care of it. टेकिंग केयर ऑफ असेट. चलो, प्रिकॉशन while using the asset. और Quality. कितना यूज होता है at a particular. Okay, that is the main thing. Usage of asset. Okay. It is we are using it for a single shift or double shift or 3 shifts. है ना? पॉसिबल है ना? इसके बेसिस पे भी आपका यूजफुल लाइफ अफेक्ट होता है ना. इसका जितना ज्यादा यूसेज उसकी उतनी यूजफुल लाइफ कम होगी. ओके. मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड, एक सेंटेंस ऐड किया है जो मैं आपको तब तक पढ़ाते वक्त बताऊंगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट. मुझे याद करवाना. चलो, सो वी आर नाउ डन विद द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. हमें ये 3 चीजें चाहिए. कोई भी केस में इन 3 चीजों का होना जरूरी है. व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द वैल्यू, सॉरी स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ओके. नाउ on the basis of which concepts depreciation is charged.
आप लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना कि मैं असेट की वैल्यू को एक पर्टिकुलर पीरियड में चार्ज नहीं कर देता हूँ, है ना। 10 लाख रुपए का एसेट है तो मैंने उसको पीएनएल में दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है। It is depreciated over a number of years. So why so? Going concern. Hmm? As per going concern concept. Going concern concept. चलो ठीक है, एक हम ऐसा मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा और हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर चार्ज करते हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, व्हाई सो? मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है वो मतलब हमारे लिए मतलब एक तरीके का वो लॉस ही है आगे जाके, मतलब हम ओके, तो मतलब depreciate एसेट कर यूज रहे हो या ना हो, हैं, हो रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू तो लो हो ही रही है, तो उसको हम मतलब फ्यूचर लॉसेस को जो कंजर्वेटिज्म इज anticipate एन कर ऑल सकते टुगेदर डिफरेंट थिंग। कंजर्वेटिज्म का मतलब वो अलग है। हम किसी भी एसेट को लोअर वैल्यू करते हैं या किसी भी चीज का प्रोविजन करते हैं, है ना। हैं। कंजर्वेटिज्म इज रिलेटेड बट इट इज लाइक मतलब बहुत दूर दूर तक रिश्ता है, ऐसा है, नजदीक वाला रिश्ता नहीं। ओके। द कॉन्सेप्ट दैट इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या मैच करते थे? पढ़ा है ना ये कि नहीं पढ़ा है? What is a matching concept? We match income and expenses. इसी से वही वाला आता है ना, वो आउटस्टैंडिंग। ओके, इस मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा होता है ना, जो करंट ईयर से कनेक्टेड है वो करंट ईयर में लिखेंगे, जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो प्रीपेड या प्री रिसीव्ड होता है। यस और नो? ऐसा करते थे ना हम लोग कि आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो भी उसको पीएनएल में लिखेंगे, और अगर प्रीपेड सैलरी होगा तो माइनस करेंगे। So that is nothing but matching concept. Okay, वो यहाँ पे कैसे यूज होगा? The thing is कि हम एसेट को ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड यूज करते हैं। ओके, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में एसेट के यूसेज से भी use the asset and derived benefit। okay? हमने एसेट को यूज किया, उसमें से बेनिफिट डिराइव किया। ओके, उसके प्रपोर्शन में हम लोग एक्सपेंस चार्ज करते हैं। ओके, ओवर ईयर एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन, ऐसा होगा ना। जितना मैंने एसेट यूज किया और उसमें से बेनिफिट डिराइव किया, उसके प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसीलिए यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल होता है। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच करते हैं या एक्सपेंस को इनकम के साथ मैच करते हैं? डोंट से दीज आर द सेम थिंग्स। इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे या एक्सपेंस को इनकम के साथ? चलो बिग क्विक। Income with expenses. इनकम विद एक्सपेंसेस। सो इट सेज दैट अगर मैं अगले साल का एक्सपेंस बुक करता हूं तो मुझे अगले साल की इनकम भी बुक करनी पड़ेगी। ऐसा हुआ ना? इट इज ऑलवेज एक्सपेंसेस विद इनकम।
एक्सपेंसेस को इनकम के साथ मैच किया जाता है, तो मुझे पहले इनकम डिसाइड करनी पड़ेगी और फिर उसके सामने मुझे एक्सपेंसेस को मैच करना पड़ेगा। और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और वो ये कहता है कि हम सिर्फ करंट पीरियड का इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो अगर इनकम करंट पीरियड का होगा तो एक्सपेंसेस भी करंट पीरियड के होंगे। So what to say? Expenses to be matched with income. So we first of all need to know what is our income, and accordingly we need to match our expenses with the income. Okay. So, is it compulsory to charge depreciation? नहीं charge करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, भूल गए, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कहाँ लिखा हुआ? आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है ऐसा? ओके, यस इट इज कंपल्सरी। रीजन ये है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता हूं, ओके, देन आई विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट इज माय ट्रू एंड फेयर पोजीशन, ओके, और परफॉर्मेंस, व्हाट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट और व्हाट इज माय एक्चुअल बैलेंस शीट पोजीशन, दैट आई विल नॉट कम टू नो। इज इट फाइन? समझ में आ गया सबको? Yes, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है। इट इज ऑल्सो कंपलसरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग भी ये कंपलसरी माना गया है। Is it okay?